Hello, my dear students. Today I am going to start new topic in chapter number 2. Students, in previous lecture, you all studied what is a relation. Students, then new topic is function. Students, what is a function? Function is a special type of relation, students. Function is a special type of relation. What is the specialty of the relation, students? A relation f from set A to set B, set A to set B is said to be function if every element of set A has one and only one image in set B. Only one image in set B. A relation f from set A to set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B, students. It is denoted by function f of A into B. If f of A into B and AB, order pair AB, belongs to function f, then f of A is equal to B, where B is called the image, B is called the image of under f, under any function f, and A is called the pre-image, and A is called a pre-image of B under F. And the definition, students, also in order pair form, students. Otherwise, function is a rule, students. Function is a rule. Function is a rule that gives new element out of some given elements, out of some given elements, students. So function एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, स्टूडेंट्स. A special type of relation is said to be a function. A special type of relation is said to be a function.
What is a special type, students? A relation f from set A to set B is said to be function if every element of set A has one and only one image in set B, students. This is the special relation. Otherwise, student, we can say that function is a one type of operation, students. If any function is given, f of x equal to 2x, students. So this is one type of instrument. Like example, students, value of x 1, then gives 2x is equal to 2. Value of x 2, then gives 4. So this is the function, students. So function is a rules that give a new element out of some given elements, student. Function is a rule. यहाँ पर स्टूडेंट रूल क्या है? एफ एक्स इक्वल टू 2x मीन्स जो भी हम x की वैल्यू ले लेंगे वो 2 टाइम हो जाएगा. अदरवाइज स्टूडेंट्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एनदर एग्जाम्पल, यहाँ अगर हम 1 लेंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा. एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर 1. एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर 2. दैट इज स्टूडेंट दैट इज नोन एज function. Function is a rule, students. Function is a rule that gives new element out of some given elements. किसी भी given element के लिए नया element हम find करते हैं, students. तो function क्या होता है इसको हम समझते हैं स्पेशल रिलेशन से. एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल लेते हैं. बिकॉज फंक्शन इज वन टाइप ऑफ रिलेशन. दिस इज द मेन डिफिनीशन ऑफ द फंक्शन. A relation f from set A to set B is said to be function if every element of set A has one and only one image in set B, students. So students, taking a example, student, if A equal to 1 2 and B is equal to AB, students, then relation 1a 1b 2a 2b, this is the relation, students. Suppose relation r1 equal to 1a and 2a, उसमें से हमने एक रिलेशन ये सपोज कर लिया स्टूडेंट. दूसरा रिलेशन हमने ले लिया 1a 2b एंड 1b. तीसरा रिलेशन हमने ले लिया स्टूडेंट्स 1b 2b. तो हमें बताना है स्टूडेंट कि ये रिलेशंस फंक्शन है कि नहीं, स्पेशल रिलेशन हुए कि नहीं. तो इसके लिए स्टूडेंट क्या हमने डिफिनेशन बताया है? रिलेशन is said to be a function if every element of set A one and only one image, student. अगर हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें स्टूडेंट्स तो ये देखो 1 and 2 और यहाँ पर क्या आने वाला स्टूडेंट A. तो 1 रिलेटेड टू A, 1 रिलेटेड 2 रिलेटेड टू A. तो हर एक एलिमेंट का एक स्पेशल इमेज आ रहा है A. सो दिस इज द फंक्शन, स्टूडेंट. ये फंक्शन होगा. बट सेकंड वाला अगर देखें हम, ये R1 स्टूडेंट फंक्शन होगा. फंक्शन होगा तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं f ऑफ A इंटू बी. सेकंड वन चेक करें स्टूडेंट, अगर R2 तो R2 में क्या है? R2 में देखो 1 रिलेटेड है A से, 2 रिलेटेड है B से, फिर 1 रिलेटेड है B से. स्टूडेंट 1 रिलेटेड है B से. तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन क्या था स्टूडेंट्स? अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B सेट टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A
हैज वन एंड ओनली वन इमेज बट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए में स्टूडेंट देखो सेट ए का वन की दो इमेज आ रही है ए एंड बी, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, नॉट फंक्शन। क्यों नहीं होगा स्टूडेंट फंक्शन? स्पेशल रिलेशन नहीं है। स्पेशल रिलेशन क्या होगा? वन की एक ही इमेज होनी चाहिए, वन एक ही से रिलेटेड होना चाहिए, या तो ए से रिलेटेड हो या तो बी से या तो किसी और से, लेकिन दोनों से रिलेशन नहीं होना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट थर्ड वन देखें तो वन रिलेटेड है बी से एंड टू रिलेटेड है बी से स्टूडेंट, तो ये भी फंक्शन है, तो कहेंगे एफ ऑफ ए इंटू बी। तो स्टूडेंट ये फंक्शन हुआ, ए फंक्शन हुआ, बट ये फंक्शन नहीं है। व्हाई? बिकॉज कि सेट ए का वन की दो इमेज आ रही स्टूडेंट, ए एंड बी। तो ये हो जाता स्टूडेंट, ऐसे हम डिफाइन करते हैं कि फंक्शन है कि नहीं है। किसी भी सेट ए की अगर दो इमेज आ जाएगी एक एलिमेंट की, तो दैट इज नॉट अ फंक्शन। व्हाई? बिकॉज अ रिलेशन set to be function if one and only one image of set A in B। तो इसका ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। अदरवाइज ऑर्डर पेयर में देखना है तो ऑर्डर पेयर में स्टूडेंट्स ये जो दूसरा नंबर है A रिपीट कहीं नहीं होना चाहिए। ऑर्डर पेयर में ये फर्स्ट नंबर कहीं पर रिपीट नहीं होना चाहिए। ये देखो फर्स्ट नंबर वन, यहां फर्स्ट नंबर टू रिपीट नहीं है, सो दिस इज फंक्शन स्टूडेंट। फर्स्ट नंबर ऑर्डर पेयर में फर्स्ट नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। ये देखो वन टू एंड वन रिपीट हो गया स्टूडेंट, ये सो नॉट फंक्शन। यहां वन एंड टू फर्स्ट नंबर रिपीट नहीं हुआ स्टूडेंट, देयरफॉर फंक्शन। तो इस तरह से ऑर्डर पेयर में फाइंड करेंगे, और इमेज में एक के दो इमेज नहीं होने चाहिए। मीन्स फर्स्ट सेट का कोई भी एक एलिमेंट सेकंड वाले के दो से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, जैसा कि इसमें है। नेक्स्ट स्टूडेंट, डोमेन एंड रेंज। फंक्शन में डोमेन और रेंज क्या होती है स्टूडेंट्स? डोमेन सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट of order pair, ordered pairs is known as domain students। ऑर्डर पेयर के जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे, अगर वो फंक्शन है तो सब क्या होंगे? डोमेन। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, फंक्शन इज गिवन 2 6 3 5 4 9। सो स्टूडेंट अगर ये फंक्शन हुआ, क्योंकि 2 का एक ही इमेज है 6, 3 का ओनली वन एक ही इमेज है 5, 4 का एक ही इमेज है 9, सो डोमेन हो गया स्टूडेंट्स फर्स्ट एलिमेंट। डोमेन, डोमेन 2 3 एंड 4। स्टूडेंट्स रेंज, रेंज, अच्छा डोमेन में स्टूडेंट ये भी लिख सकते हैं सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इज नोन एज डोमेन। अदरवाइज स्टूडेंट ये भी लिख सकते हैं सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स, सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स in function fx is called domain। it means स्टूडेंट किसी भी फंक्शन fx में x की वैल्यू का जो सेट आएगा उसको हम क्या कहेंगे? डोमेन। स्टूडेंट्स रेंज, रेंज क्या होगी स्टूडेंट्स? सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सेट of the value of
एफ एक्स इज नोन एज रेंज, नोन एज रेंज स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट हमने सीख लिया डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट। देन स्टूडेंट्स रियल फंक्शन, रियल फंक्शन, रियल फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, रियल फंक्शन। इफ function f of a into b is given and a is set of real number and b is also set of real number called real function, real function। स्टूडेंट्स इजिली ऐसा समझ सकते हो कि सच टाइप ऑफ फंक्शन whose domain and range both are in real number or subset of the real number that is called real function। अदरवाइज दूसरी डिफिनीशन ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, such type of function whose domain and range both are set or subset of real numbers is called real function। For example, f of r into r। स्टूडेंट फर्स्ट भी रियल नंबर हो गया और सेकंड वाला भी रियल नंबर हो गया, मीन्स सेट ए डोमेन एंड सेट बी कोडोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर हो गए स्टूडेंट। डोमेन एंड कोडोमेन दोनों जब रियल नंबर हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रियल फंक्शन कहते हैं स्टूडेंट। देन रियल वैल्यूड फंक्शन स्टूडेंट्स, रियल फंक्शन देन रियल वैल्यूड फंक्शन, दोनों में डिफरेंस है स्टूडेंट्स, अच्छे से समझना है इसको। रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल फंक्शन हमने पढ़ा, अब रियल वैल्यूड फंक्शन। स्टूडेंट्स रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन f of a into b, a function f of a into b is called real valued function, real valued function if b is subset of r, subset of r, subset of r, it means set of subset of r, set of all real number, set of all real numbers स्टूडेंट, रियल नंबर्स। तो रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, डोमेन जरूरी नहीं है कि रियल हो, बट उसका बी वाला ये रेंज जो है क्या होनी चाहिए, वो रियल नंबर होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट ये हो गया रियल वैल्यूड फंक्शन।
अब रियल वैल्यूड फंक्शन में स्टूडेंट एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो ये देखो, R5 S6 एंड T7 स्टूडेंट्स। तो सेट बी देखो 5 6 एंड 7, सेट ए क्या है स्टूडेंट्स, RST। सेट बी क्या है स्टूडेंट्स, 5 6 7 रियल नंबर, दैट इज नोन एज रियल वैल्यूड फंक्शन। इसमें ये रियल नहीं है बट बी रियल है, दैट इज नोन एज रियल वैल्यूड फंक्शन स्टूडेंट्स। तो अभी हम स्टैंडर्ड फंक्शंस पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, मिसलेनियस में स्टूडेंट्स। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। So students, we will move on question number 1. So students, question number 1. 2.3 question number 1. Exercise 2.3 question number 1 students. Question number 1, which of the following relation, which of the following relation, which of the following relation or function, कौन से रिलेशन स्टूडेंट फंक्शन हैं वो हमें बताने हैं। which of the following relations are function students. So first one students, 2 1, first one in order pair, 2 1 5 1 2 1 comma 5 1 comma 8 1 11 1 14 1 17 1 स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट वन स्टूडेंट सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहले, फिर सेकंड वन करेंगे। सॉल्यूशन देख लो, फर्स्ट एलिमेंट कहीं पर रिपीट तो नहीं हुआ है ऑर्डर पेयर में। अगर फंक्शन ऑर्डर पेयर फॉर्म में गिवन है स्टूडेंट तो फर्स्ट एलिमेंट को चेक करो, 2 5 8 11 14 एंड 17 डज नॉट रिपीट, सो दिस इज अ फंक्शन स्टूडेंट। फर्स्ट वन, it is a function, it is a function because to each first element of the order pair, to each first element of the order pair, element of the ordered pair, there corresponds exactly one second element. There corresponds exactly one second element, one second एलिमेंट स्टूडेंट्स। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज अ फंक्शन बिकॉज टू ईच फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर देयर करस्पॉन्ड्स टू एग्जैक्टली वन सेकंड एलिमेंट। 2 के साथ ओनली 2 के साथ एक ही इमेज आया है, 5 का एक ही इमेज आया है। ये नहीं 5 1 से भी रिलेटेड है, 2 से भी रिलेटेड है, 3 से भी। 5 केवल एक ही नंबर से रिलेटेड है, 8 एक ही नंबर से रिलेटेड है। इट मीन्स स्टूडेंट एकदम सिंपल वे है, फर्स्ट पर कोई नंबर रिपीट नहीं हो, फर्स्ट पर कोई नंबर रिपीट ना हो। 2 5 8 11 14 17 कोई रिपीट ना हो। इसको ऐसा भी बना के देख सकते हो, ये देखो सेट ए और बी ले लो तो 2 5 8 11 14 17, 2 किससे रिलेटेड है 1, 5 किससे रिलेटेड है
1, 8 किससे रिलेटेड है 1 स्टूडेंट्स, तो इसके एक ही इमेज है, 2 का इमेज 1, 5 का इमेज 1, 8 का इमेज 1, देन 11 का इमेज 1, देन 14 का इमेज 1, 17 का इमेज 1। बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि 17 के 2 इमेज हैं, ओनली एक ही इमेज आया है 1, तो ये फंक्शन होगा f ऑफ a इंटू बी। सो फर्स्ट वन फंक्शन है स्टूडेंट। देन सेकंड वन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द सॉल्यूशन। सेकंड वन स्टूडेंट्स, सेकंड वन 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 and 14 7 and 14 7 students। so second one में कोई नंबर रिपीट हुआ स्टूडेंट्स? नो, कोई रिपीट नहीं हुआ। देखो 2 4 6 8 10 12 14 और स्टूडेंट्स, सो इट इज अ फंक्शन, it is a function because each first element of the ordered pair, each first element of the ordered pair there corresponds exactly one second element स्टूडेंट। ये 2 का इमेज एक ही है, 2 एक ही नंबर से करस्पॉन्डेंस है स्टूडेंट, 4 एक ही नंबर से करस्पॉन्ड है, भले 6 एक ही नंबर से करस्पॉन्ड है, 8 एक ही नंबर से करस्पॉन्ड है, 10 एक ही नंबर से करस्पॉन्ड है, 12 एक ही नंबर से करस्पॉन्ड है, 14 एक ही नंबर से करस्पॉन्ड है। देन स्टूडेंट इसमें हमें डोमेन एंड रेंज भी बताना है। सो डोमेन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? फर्स्ट वन में हमने छोड़ दिया था, उसको भी अभी लिख लेंगे। डोमेन सेट ऑफ द ऑल फर्स्ट एलिमेंट, set of the all first element 2 4 6 8 10 12 14, 2 4 6 8 10 12 14 हमने डिफिनीशन में बताया था स्टूडेंट डोमेन के, सेट ऑफ द ऑल फर्स्ट एलिमेंट अगर ऑर्डर पेयर फॉर्म में है। देन स्टूडेंट्स रेंज, सेट ऑफ द ऑल सेकंड एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स। एंड फर्स्ट वन हम लोगों ने छोड़ दिया था स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट वन का डोमेन क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन डोमेन, फर्स्ट वन में क्या था स्टूडेंट? 2 1 था, 5 1 था, तो फर्स्ट एलिमेंट 2 5 8 11 14 and 17 and range स्टूडेंट ऑल सेकंड एलिमेंट में सब में 1 ही आया था स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट का डोमेन और रेंज हो गया स्टूडेंट, जो कि फर्स्ट वाले में छूट गया था। तो सेकंड इज आल्सो फंक्शन एंड डोमेन इज दिस एंड रेंज इज दिस स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थर्ड वन स्टूडेंट्स, third one, so third one students, 1 3 1 5 2 5 students, we observe the given function student। ये देखो नंबर 1 and 1 repeat, 1 corresponds to 3 and 1 also corresponds to 5,
स्टूडेंट्स 2 एलिमेंट से करस्पॉन्डेंस हो गया, इसकी 2 इमेज आ रही, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन स्टूडेंट्स। थर्ड वन, इट इज नॉट a function. Why? Because the two order pairs, the two ordered pairs 1 3 and 1 5 have the same first component, have the same first component otherwise element। स्टूडेंट्स अगर किसी भी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट, कोई भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो जाएंगे अदरवाइज सेम हो जाएंगे, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। इसके लिए फंक्शन नहीं है स्टूडेंट्स, तो न तो इसका डोमेन होगा न तो इसका रेंज होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट question number 2. So student, we will move question number 2. Students, question number 2. Question number 2, find the domain and range of the following function students. Find the domain and range of the गिवन फंक्शन स्टूडेंट्स। तो इसमें स्टूडेंट हमें ये नहीं बताना है कि फंक्शन होगा कि नहीं, ओनली फाइंड डोमेन एंड रेंज स्टूडेंट्स। सो दे विल ट्राई टू फाइंड डोमेन एंड रेंज। फर्स्ट वन स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट वन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स स्टूडेंट। क्लियरली स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करने पर ही हमें पता लग जाता है, क्लियरली एफ इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ, क्लियरली एफ इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर स्टूडेंट्स। अगर हम इसमें स्टूडेंट्स कोई भी नंबर रखें x के प्लेस पर, कोई भी रियल नंबर, सपोज यहां पर 2 रखो एग्जांपल के लिए, माइनस मॉड ऑफ 2, तो यहां माइनस है स्टूडेंट इसलिए -2 हो गया। ऐसा लिखो माइनस माइनस मॉड ऑफ 3, तो मॉड की मीनिंग होती स्टूडेंट कि इसके अंदर जो नंबर आया होता है वो प्लस ही लिखा जाता है और इसके बाहर साइन क्या है, माइनस। यहां अगर -5 आया होता स्टूडेंट्स तो ये -5 प्लस हो जाएगा, बट इसके पहले माइनस आया तो क्या आ गया, माइनस। ऐसा होता अगर 7, तो ये तो 7 है स्टूडेंट, बट इसके पहले माइनस आया तो माइनस हम क्या देख रहे हैं, सब नेगेटिव रियल नंबर्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स। अगर x कोई भी रियल नंबर होगा तो fx की वैल्यू क्या आने वाली है स्टूडेंट, लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 इट मींस नेगेटिव स्टूडेंट्स। सो वैल्यू ऑफ fx क्या आ गई, सो डोमेन क्या हो गया स्टूडेंट्स, डोमेन इसका हो गया स्टूडेंट्स r। इट मींस रियल नंबर्स। बट स्टूडेंट कोडोमेन रेंज इसकी क्या हो गई, रेंज स्टूडेंट्स, रेंज इज ऑलवेज नेगेटिव रियल नंबर स्टूडेंट। रेंज की डिफिनेशन में क्या बताया था, द सेट ऑफ द ऑल वैल्यू ऑफ द एफएक्स। सो ऑल वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0, it means student r minus, it means negative real numbers। so students value of the range of first one is
negative real number. Then students, second one students, second one is a very important question students. Second one students, question is given f of x equal to root 9 minus, second one, question number 2, f of x equal to root 9 minus x square student. So student, what is the domain? The set of the all values of the x student. The set of the all values of x is known as domain, and set of all values of fx is known as codomain students. So all values of all values of x, first of all we will try to find the all values of x student. तो स्टूडेंट्स ये देखो, कॉमन सेंस की बात है, रूट में आपने कभी नेगेटिव नंबर का रूट फाइंड किया हुआ है? कभी भी नेगेटिव नंबर का रूट आपने फाइंड किया हुआ है? नहीं, नेगेटिव नंबर का रूट पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स. इट मीन्स ये रूट के अंदर जो नंबर है वो ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा स्टूडेंट्स, ऑलवेज पॉजिटिव. तो स्टूडेंट्स वी हैव f of x equal to root 9 minus x square स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स अब ये fx कब डिफाइंड होगा? जब इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी. सो स्टूडेंट्स फंक्शन इज डिफाइंड on 9 minus x square greater than equal to 0. इसकी वैल्यू स्टूडेंट 0 या मोर देन 0 होगी तो ही ये डिफाइंड होगा. इट मीन्स स्टूडेंट्स 9 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब ये स्टूडेंट इनइक्वलिटी आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं. इनइक्वलिटी में टर्म को अगर हम चेंज कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 हो जाता है. अगर ये नंबर को चेंज करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स. इट मीन्स एक्स लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 3. इट मीन्स -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3. अगर ऐसे समझ में आ जाए स्टूडेंट तो ये हो गया एक्स की वैल्यू, ये हो गया डोमेन स्टूडेंट्स. डोमेन क्या हो गया? -3 to 3. इंटरवल फॉर्म में हमने लिख दिया, ये आप लोगों ने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था इंटरवल फॉर्म. तो -3 to 3 इसका डोमेन होगा. एक्स की वैल्यू -3 to 3 लेने पर ही फंक्शन डिफाइंड होगा स्टूडेंट. अगर यहाँ एक्स की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं स्टूडेंट्स तो क्या हो गया? 9 - 4 का स्क्वायर 16. तो क्या आ गया? -7. -7 का स्क्वायर रूट आप कभी भी फाइंड नहीं कर सकते. तो डोमेन क्या हुआ स्टूडेंट? एक्स की वो वैल्यू जिस पर फंक्शन डिफाइंड होता है. तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? -3 to 3. अदरवाइज जिसको इस इनइक्वलिटीज नहीं समझ आता स्टूडेंट तो सेकंड मेथड ऐसा भी हम सीख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 9 माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्टली इक्वल टू 0 कर दो. 3 - x एंड 3 + x हो जाएगा स्टूडेंट, फैक्टर हो जाएगा. तो इससे x की वैल्यू 3 आ जाएगी और इससे x की वैल्यू -3 आ जाएगी. 2 पॉइंट आ जाएंगे स्टूडेंट, -3 एंड 3. तो इसको कहते हैं क्रिटिकल वैल्यूज. अब वैल्यू पुटअप करके देख लो कि इसके बाहर -4 आ रहा है, -4 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है? नहीं, -7 आ जा रहा है. इसके बाद -4 आ रहा है तो 4 का स्क्वायर 16, फिर से -7 आ जा रहा है. इट मीन्स इस इंटरवल की वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है. तो डोमेन हो गया स्टूडेंट्स -3 to
3। ये हो गया डोमेन -3 to 3। अब स्टूडेंट इसके बाद आता है रेंज फाइंड करना। ये देखो डोमेन के लिए ये हो गया कि एक्स स्क्वायर ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 9, अदरवाइज एक्स स्क्वायर ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 9, देन फंक्शन इज डिफाइंड, अदरवाइज नॉट डिफाइंड स्टूडेंट। तो अब हम जब रेंज फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो रेंज क्या होती है? रेंज वैल्यू ऑफ द एफ एक्स, रेंज स्टूडेंट सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो स्टूडेंट। डोमेन क्या आया हुआ है? डोमेन आया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये डोमेन है। तो वैल्यू पुटअप कर दो स्टूडेंट्स। एफ ऑफ -3 ले लो, तो -3 लोगे तो क्या हो जाएगा? 9 माइनस -3 का स्क्वायर, तो 0 हो गया स्टूडेंट। -2 ले लो तो क्या हो जाएगा? 9 -2 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा? √5। देन f -3 ले लो। ऐसे इसके बीच के कोई भी नंबर ले सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसे -1 ले लो, -1 ले लोगे तो 9 -1 स्क्वायर क्या आ जाएगा? √8 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ऐसे 0 ले लो तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ऐसे 1 ले लो तो क्या आ जाएगा? 1 के लिए ही √8 आ जाएगा स्टूडेंट्स। और फिर स्टूडेंट्स 3 हमने लिया, 0 आया था। 2 लेंगे फिर से यही आने वाला है, √5 आ जाएगा। और 3 लेंगे स्टूडेंट्स तो फिर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि रेंज जो है 0 से 3, √5 भी 3 के अंदर है, √8 भी 3 के अंदर है, √8 भी 3 के अंदर है, √5 भी 3 के अंदर है। तो रेंज क्या हो गई स्टूडेंट्स? रेंज हो गई 0 से लेकर के 3 तक का नंबर, ये रेंज हो गया। अदरवाइज दूसरा मेथड ये है स्टूडेंट रेंज फाइंड करने का। ये तो वैल्यू पुटअप करके हमने फाइंड कर लिया। क्यों? क्योंकि रेंज क्या होता है स्टूडेंट? सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ द एफ एक्स। अगर एक्स की वैल्यू हमें पता है तो एफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अदरवाइज दूसरा मेथड स्टूडेंट ऐसा कर लेते हैं। ये देखो एफ एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, तो एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, तो एफ एक्स के लिए हम क्या कर देंगे? इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट। ये देखो रेंज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इशू को स्टूडेंट वाई सपोज कर लेते हैं, 9 - x स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स, 9 - x स्क्वायर। एंड स्टूडेंट्स स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड में, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्टूडेंट आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 - x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इस साइड में ले लिया स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 - y स्क्वायर स्टूडेंट। बट एक्स स्क्वायर क्या है स्टूडेंट्स? 9 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अदरवाइज स्टूडेंट एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पर लेस देन इक्वल टू 9 अगर पुटअप कर देते हैं स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर के प्लेस पर लेस देन इक्वल टू 9, तो यही आया स्टूडेंट 9 - y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से ऐसा कर दिए स्टूडेंट, तो 9 - y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 स्टूडेंट्स। 9 कैंसिल हो गया, -y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, सॉरी ऐसा कर लेते हैं, 9 - y स्क्वायर, 9 - y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। सो स्टूडेंट्स y स्क्वायर को उस साइड में ले लेते हैं, 9 - 9 ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, 0 लेस देन इक्वल टू y स्क्वायर, देयरफॉर y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। देन y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 आ गया स्टूडेंट, इक्वेशन 1 यहाँ आया था। अब स्टूडेंट्स ये देखो इक्वेशन 1 वहाँ पर आया था, और अब जो रेंज आई हुई है स्टूडेंट्स,
रेंज क्या आई हुई है, रेंज है √9 माइनस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स रेंज जो आई हुई है ये 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया हुआ है। 9 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया, तो ये वैल्यू तभी सेटिस्फाइड होगी जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स, देयरफॉर 9 ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर स्टूडेंट्स, देयरफॉर स्टूडेंट्स y की वैल्यू क्या हो गई, 3 2 माइनस 3 हो गई। अब इक्वेशन 3 आ गया स्टूडेंट्स, ये देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यहाँ y की वैल्यू क्या आई, -3 to 3। तो दोनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट, ये दोनों इक्वेशन में कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी, y की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव लेना ही नहीं है। तो y की वैल्यू 0 से लेकर के कहां तक हो गई स्टूडेंट्स, 3। देयरफॉर स्टूडेंट्स, देयरफॉर रेंज y इज इक्वल टू fx इक्वल टू 0 to 3। अदरवाइज ऐसा भी लिख सकते थे 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 3। ये क्यों लिखना पड़ा, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। स्टूडेंट 2 में आया y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, 3 में आया कि y की वैल्यू -3 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो इन दोनों से कौन सी वैल्यू रखें कि दोनों को सेटिस्फाइड करे, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब y पॉजिटिव होगा, तो 0 से 3 तक की वैल्यू, यही हो गया आंसर, रेंज 0 to 3। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, a function is defined by f of x equal to 2x minus 5। write down the value, write down the value स्टूडेंट्स। सो क्या वैल्यू फाइंड करना है, f of 0, f of 7, f of -3, f of -3 स्टूडेंट्स, f of -3। तो स्टूडेंट्स ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये क्या करेंगे, फंक्शन जो गिवन है स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में, फंक्शन जो गिवन है f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 5, तो x के प्लेस पर क्या पुटअप कर देंगे स्टूडेंट्स, x के प्लेस पर 0, 2 इंटू 0 माइनस 5 इक्वल टू -5। देन स्टूडेंट्स f ऑफ 7 के लिए x के प्लेस पर क्या पुटअप कर देंगे 7, 2 इंटू 7 माइनस 5, 14 माइनस 5 9। देन स्टूडेंट्स f -3, 2 इंटू -3 -5, -6 -5 इक्वल टू -11 स्टूडेंट्स। तो आंसर हुआ -5, 9 एंड -11 स्टूडेंट्स। वैल्यू पुटअप कर देनी थी सीधे, x के प्लेस पर 0 दिया तो 0, 7 दिया तो 7, -3 दिया तो -3। नेक्स्ट